Very good morning to all of you. Today we will discuss chapter 7 and our topic is informal communication. You know there are the two types of communication, formal communication and informal communication. Formal communication we have already discussed in our previous video. So today we will discuss informal communication. First of all, what do you mean by the informal communication? Informal communication means unofficial communication. It means unofficial communication between various individuals which are not connected to office. ठीक है, such type of communication is called the informal communication. There is no fixed path of informal communication. This communication is also run in a zigzag manner. So we can see that informal communication is also called the grapevine communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, हैव नो फिक्स पाथ. दिस कम्युनिकेशन इज आल्सो रन इन ए zigzag manner. So the grapevine communication is also the another name of informal communication. In our business there are the various individuals are working. Every individual have different interests. So for obtaining the psychological satisfaction, if all individuals is also do the communication to each other, then such type of communication is called the informal communication. And all individuals is also connected to each other as a friends way. ठीक है? But if a communication between senior and subordinate, this communication is called the formal communication. In formal communication, we follow the rules and regulation and a systematic manner में वो perform होता है. But in informal communication, there is no systematic way, there is no rules regulation, there is no certain path. ठीक है? In any direction we can communicate, in any language we can use. So the informal communication is also arise between all those persons या individuals which are not connected to each other as a official way या or not connected to senior and subordinates. So unofficial communication is called the informal communication. Features में first feature आती है focus on psychological satisfaction. It means informal communication is also conducted between informal communication between various employees are also getting the psychological satisfaction. It means emotional relief आपको provide करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, वेरियस इंडिविजुअल्स आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, उन सबके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कहते हैं कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोगों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है, एक इमोशनल रिलीफ आप लोगों को देता है. इससे कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे मेरा माइंड क्या हो जाता है, खुश हो जाता है. तो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वेरियस इंडिविजुअल्स आपस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. इससे कहीं ना कहीं उन सब लोगों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना नहीं है. सेकेंड, फास्ट. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड वेरी फास्ट होती है, बिकॉज देर इज नो सिस्टमेटिक वे टू सेंड द इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन. In any way we can send our information, ठीक है, to another person. So the speed of informal communication is very fast. Third, spreading rumors. कहता है इसमें rumors ज्यादा होती है, अफवाहें ज्यादा होती है. rumors का मतलब अफवाहें ज्यादा होती है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ओरल फॉर्म में होता है, और ओरल फॉर्म में जो भी कम्युनिकेशन होता है देयर इज नो रिटन प्रूफ. ठीक है? सो जब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओरल कम्युनिकेशन सेंड किया जाता है तो एवरी पर्सन पर इंफॉर्मेशन का सम पार्ट लॉस्ट हो जाता है. जब रियल में उस इंफॉर्मेशन जिस पर्सन के पास मुझे सेंड करनी है उस पर्सन के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उस इंफॉर्मेशन का 70% जो पार्ट होता है वो लॉस्ट हो चुका होता है. सो इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रूमर्स बहुत ज़्यादा रहती है, रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, अफवाहें ही ज़्यादा होती है. गेट डिस्टोर्टेड. गेट डिस्टोर्टेड का मतलब होता है कि अगर इसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं वेरियस
चैनल्स के थ्रू सेंड करती हूँ, वेरियस पर्सन्स के थ्रू सेंड करती हूँ, तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ओरल वे में है, ओरल वे में है तो ऑटोमेटिक इसका कुछ पार्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इट मीन्स खत्म कर देते हैं लोग, अपनी लैंग्वेज यूज कर देते हैं और जिस वे में, जिस लैंग्वेज में सेंडर ने मैसेज सेंड किया था, सेम वे में रिसीवर के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारे जो पार्ट है वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो द इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन ट्रेवल इज वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर एंड गेट डिस्टोर्टेड व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत अनसिस्टमैटिक मैनर से सेंड की जाती है, इसलिए जब वेरियस चैनल्स के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ फीचर्स है, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वेरियस फ्रेंड्स के बीच में आपस में डिस्कशन होता है। अगर उन फ्रेंड्स के साथ हमारा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, लीक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये बात किसने कही है। जिस बंदे ने भी हमारी इंफॉर्मेशन को लीक किया, इफ यू आइडेंटिफाई ऑफ दैट पर्सन देन यू कांट आइडेंटिफाई, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई आपके पास रिटन प्रूफ नहीं होता कि ये पर्सन की ये बात किसने बोली है, क्योंकि ये जनरली ओरल फॉर्म में होता है, इसलिए इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं होता। तो यहाँ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को फोकस, यानी हम क्यों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि हमें इमोशनल रिलीफ मिलता है, बात करने से हमें अच्छा लगता है, इसलिए साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इसकी स्पीड वेरी फास्ट होती है। ठीक है, ये इसमें र्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और डिस्टोर्टेड क्योंकि बड़ा अनसिस्टमेटिक मैनर में होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, वेरियस चैनल में डिस्टोर्ट हो जाती है और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इसमें लीक हो जाती है। क्यों लीक हो जाती है? क्योंकि कोई रिटन प्रूफ नहीं होता, किसने ये बात लीक की, आप इसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजी यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप अपने बिजनेस में कैसे स्ट्रेटेजिक फॉर्म में यूज कर सकते हो। यानी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात आपको समझाऊं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप अपने बिजनेस में कैसे बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो, कैसे उसका स्ट्रेटेजिक यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्ट्रेटेजिक यूज कर सकते हो। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ए प्रॉपर वे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें गिवन है, ध्यान से स्टूडेंट्स रीडिंग करना। द मैनेजर कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से एक मैनेजर कम्युनिकेशन गैप को भी फिल कर सकता है। With the help of informal communication, we can fill the communication gap between various employees. क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटन फॉर्म में होता है और रिटन फॉर्म में कुछ मेन बात ही आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो या शेयर करते हो, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो वेरियस इंडिविजुअल्स के, जो वेरियस एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, कहता है उस गैप को भी हम फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आप फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों ही टाइप की बात कर सकते हो। सेकेंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रैवल वेरी फास्ट। कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अपना सर्टेन पाथ नहीं होता, ये जिग जैग मैनर में किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सो द स्पीड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वांट टू सेंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू द वेरियस एम्प्लॉइज in a fast way, then the organization is also use the informal communication. अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत तुरंत पहुंचानी है सभी एम्प्लॉय के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करके वो इंफॉर्मेशन वेरियस एम्प्लॉयज तक अवेलेबल करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड फास्ट होती है, इसलिए इसको उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाने में भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। थर्ड, The managers can get true and accurate response of subordinates. कहता है
कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और ट्रू रेस्पॉन्स ले सकते हैं subordinate से. It means if we are connected to informally way to each other and the manager is also want to take the feedback from subordinates, then with the help of informal communication we can take the correct feedback from our subordinates. But if you want to take the feedback from formal way, formal communication, then you can't obtain the correct feedback from subordinates. क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी एक सबॉर्डिनेट जो होता है वो सीनियर को बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है फीडबैक के, लेकिन इनफॉर्मल में बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज ए फ्रेंड्स. ठीक है, और फ्रेंड्स में वो जब भी आपको करेक्ट फीडबैक देंगे तो कहता है बिल्कुल मैनेजर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का एक्यूरेट फीडबैक क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉइज एंड results in reducing union and management problems. कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं भाई, वेरियस एम्प्लॉइज को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ऑब्वियस बात है वो यूनियनबाजी नहीं करेंगे, मैनेजमेंट के सामने कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ऑटोमेटिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट्स को या वेरियस एम्प्लॉइज को क्या देता है, एक इमोशनल रिलीफ देता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है. और जब एम्प्लॉइज को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो स्टूडेंट्स वो कभी भी यूनियनबाजी नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ऑटोमेटिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप इस फॉर्म में स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो. कम्युनिकेशन गैप को फिल किया जा सकता है. ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन बड़ी फास्ट स्पीड से सेंड करना चाहते हो देन यू कैन सेंड, और इससे फीडबैक करेक्ट मिल जाता है. इससे एम्प्लॉइज का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल रिलीफ मिलता है, इसलिए वो यूनियनबाजी नहीं करता. सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, मीनिंग. व्हाट डू मीन बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. उसके बाद आता है रिलेशंस. कहता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो सीनियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन को इंडिकेट करता है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेशंस होता है उसको इंडिकेशन देता है. यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो अराइज बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल्स. ठीक है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो अराइज बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशन के बीच में अराइज होता है. ये वेरियस इंडिविजुअल्स के रिलेशंस के बीच में अराइज हो सकता है, जिनके बीच में कोई सीनियर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, सब आपस में फ्रेंड्स हैं, तो उन वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. नेचर. कहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड नेचर का होता है. कैसे नेचर का होता है, रिजिड. जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो रिजिड नेचर का नहीं होता. चैनल. कहता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल रिजिड, बेटा ये तो आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप में चेंज नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से इसको, जबकि ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी कोई बात किसी भी तरीके से आप होल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कैसे भी अपनी बात को रख सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबल वे में होता है. फोर्थ, चैनल. कहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, फॉर्मल चैनल. जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कहता है उसमें जो चैनल यूज किया जाता है इट इज बेस्ड टू इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड द फिक्स्ड लाइन ऑफ कमांड्स इज फॉलो. कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसका कोई फिक्स चैनल नहीं होता. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का देयर इज नो फिक्स चैनल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई फिक्स चैनल नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का अपना एक फिक्स चैनल होता है, उसी चैनल में ये मूव करेगा, उसी सर्टेन पाथ पे मूव करेगा, किसी भी साइड में आप अपने चैनल से हट नहीं सकते. लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई फिक्स चैनल नहीं होता. एक्सप्रेशन. कहता जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जनरली वो रिटन फॉर्म में होता है. जनरली कैसे फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है.
जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका कैसे होता है, ओरल फॉर्म में होता है। तभी तो इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते कि ये बात किसने बोली है, क्योंकि ओरल बोली हुई बात का कोई प्रूफ नहीं होता है। नीड, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल की नीड है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल की नीड होती है, क्योंकि इंडिविजुअल अपने नीड को फुलफिल करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्डर पास करने के लिए सीनियर सबॉर्डिनेट की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करने के लिए इसको अडॉप्ट करता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। स्पीड, यू नो फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। स्लो क्यों होती है, क्योंकि इसका अपना सर्टेन पाथ होता है, उसी पाथ से ये क्या करती है, मूव करती है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, फास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन में जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन सेंड की, क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हो कि ये बात आपने बोली है, यस। कहते फॉर्मल कम्युनिकेशन में सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है और रिटन फॉर्म का प्रूफ होता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने सेंड की है, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। और क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बात किसने बोली, कैसे बोली, ओरल फॉर्म में होता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। रिकॉर्ड, कहता है ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको फ्यूचर में आप एज ए रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फ्यूचर में एज ए रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ओरल बोली हुई बात को कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कई बार बच्चे बड़े पूछते हैं मैडम ओरल बोली हुई बात को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि हम आजकल फोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, हर छोटी छोटी बात के लिए आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप दोस्तों के साथ बैठे बात कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, क्या हर टाइम आप रिकॉर्डिंग करते हो, नहीं। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जबकि जो रिटन में लिखा हुआ होता है तो ऑब्वियस बात है रिटन प्रूफ ही होता है। तो कहता है कि भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एज ए फ्यूचर में हम रिकॉर्ड की फॉर्म में मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको फ्यूचर में एज ए रिकॉर्ड की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। बेटा दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, आई होप योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में देयर आर द वेरियस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। Barriers to effective communication. It means when we send a message from one person to another person, then some problems or some barriers is also arise in our communication. So we divide all these barriers in 4 parts. We divide in all barriers in 4 parts. Barrier का मतलब होता है बेटा hindrance। जब भी हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं तो सम टाइम हमारे कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर आती है, कुछ हिंड्रेंस आती है, जिससे हमने जिस वे में कम्युनिकेशन अगले पर्सन को सेंड किया है वो उस वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो कम्युनिकेशन में एक हिंड्रेंस अराइज हो जाती है, तो उन्हीं हिंड्रेंस को ही हमें बैरियर बोला जाता है। तो कहते हैं कम्युनिकेशन में हमें जितनी भी बैरियर आती है उन बैरियर्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो बैरियर है वो आपकी सेमेंटिक बैरियर आती है, सेकेंड साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फोर्थ विल बी आपकी पर्सनल बैरियर है। देयर आर द 4 टाइप ऑफ बैरियर इन आवर कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट आपकी बैरियर आती है वो आती है आपकी सेमेंटिक बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय द सेमेंटिक बैरियर? कहते हैं सेमेंटिक बैरियर मीन्स दैट बैरियर विच आर अराइज ड्यू टू लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से अगर कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आती है, कोई हिंड्रेंस आती है, तो बेटा उस बैरियर को सेमेंटिक बैरियर बोला जाता है। चाहे आप लोगों की मतलब की वोकैबुलरी वीक हो, या आप लोग अच्छे से मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, या आपने कुछ भी करा हो, लेकिन लैंग्वेज की वजह से जो बैरियर हमारे कम्युनिकेशन में आती है उस बैरियर को क्या बोला जाता है, सेमेंटिक बैरियर।
सेमेंटिक बैरियर के क्या क्या कोजेज है, तो सेमेंटिक बैरियर के ये 6 कोजेज बता रखे हैं जिसकी वजह से सेमेंटिक बैरियर आ जाती है। फर्स्ट आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज मीन्स व्हेन द सेंडर express the message in a bad form, then the receiver is not understand of that message. Sometimes the vocabulary of the sender is not very good and sometimes वो कुछ words को use करना ही भूल जाता है या फिर वो अपने communication में कुछ wrong word use कर देता है। It means वो अपने message को बहुत bad तरीके से express करता है, इससे receiver भी उसका meaning क्या करेगा, wrong ही understand करेगा, तो भी इससे कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरियर आ जाती है। बेटा बैडली एक्सप्रेस मैसेज, देखो इसके नाम से ही आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, बैडली का मतलब बुरे तरीके से एक्सप्रेस करना अपने मैसेज को। इट मीन समटाइम मैनेजर की वोकैबुलरी पुअर होती है या कुछ वर्ड वो यूज करना अपने कम्युनिकेशन में भूल जाता है या फिर वो रॉन्ग वर्ड यूज कर लेता है, और रॉन्ग वर्ड यूज करके वो अपने मैसेज को जब रिसीवर के पास सेंड करेगा तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली रिसीवर उसका मीनिंग भी रॉन्ग ही अंडरस्टैंड करेगा, इससे भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरियर आती है। ऐसी बैरियर बैडली एक्सप्रेस मैसेज की वजह से अराइज होने वाली बैरियर होती है। तो बैडली का मतलब कि मैंने रॉन्ग वर्ड्स यूज किए या मैं कुछ वर्ड्स को यूज करना भूल गई या फिर मेरी वोकैबुलरी वीक होने की वजह से मैंने प्रॉपर मैसेज सेंड नहीं किया, देन मैंने रिसीवर के पास मैसेज सेंड किया और रिसीवर ने उसका रॉन्ग मीनिंग ही क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। सो दिस प्रॉब्लम इज आल्सो अराइज ड्यू टू बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मैसेज को गलत तरीके से एक्सप्रेस करने से, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है या कुछ लोग, कई बार हम कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है कि हम कुछ वर्ड्स यूज करना भूल जाते हैं, कुछ वर्ड्स हम क्या करना, यूज करना ही भूल जाते हैं। हम अपने दिमाग में तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे हम बोल कुछ और रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने मान लो मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन कर रही हूँ, मेरे को 15 लिखना है, मैं बोल तो क्या रही हूँ, 15 ही बोल रही हूँ, ठीक है, और मुझे लिखना क्या है, यहाँ पर 16 है, तो इसका मतलब होता है मेरा वर्बल कम्युनिकेशन और मेरे बॉडी जस्ट मैच नहीं होते, तो फिर वो 6 वाले पॉइंट से कोरिलेट कर जाता है। यहाँ पर तो क्या होता है कि आपने वो वर्ड यूज करना ही भूल गए और अगला वाला वर्ड यूज कर दिया, तो बीच में एक वर्ड आपने मिस कर दिया तो आपका सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन पाता, सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनेगा तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, वो बैडली एक्सप्रेस मैसेज की वजह से आती है। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, बेटा एक ही वर्ड के कई बार 2 मीनिंग होते हैं, तो इससे भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरियर आ जाती है, क्योंकि जिस वे में मैंने वो वर्ड यूज किया हो सकता है रिसीवर उसको दूसरे वे में उस वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करे, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है राइट, फॉर एग्जाम्पल क्या है, राइट, RIGHT, एक क्या है, WRIT, फिल, फील, ठीक है। तो कई बार क्या होता है मैंने राइट वर्ड यूज किया लिखने के लिए, लेकिन रिसीवर ने राइट का मीनिंग क्या लिख लिया, WRIT, राइट मानी ठीक है, ठीक है, WRIT लिखने वाला राइट उसने क्या कर लिया, समझ लिया। तो राइट वर्ड है, मैंने राइट RIGHT राइट के लिए यूज किया, लेकिन उसने मीनिंग क्या ले लिया, WRITE, राइट का मीनिंग उन्होंने ये ले लिया, इससे भी कम्युनिकेशन में क्या आ गई, बैरियर आ गई। तो कई बार एक ही वर्ड के 2 मीनिंग होने की वजह से भी कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस अराइज हो जाती है, क्योंकि जिस वर्ड को जिस वे में मैंने यूज किया हो सकता है रिसीवर उसी वर्ड को दूसरे वे में समझ लेता है। सो द कम्युनिकेशन बैरियर इज आल्सो अराइज, ठीक है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही सिंबल के अलग अलग मीनिंग होने की वजह से। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चों कि जिस लैंग्वेज में मैंने मैसेज सेंड किया वो लैंग्वेज रिसीवर को नहीं आती है, अब रिसीवर मेरी लैंग्वेज के मैसेज को अपनी ओन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेशन में क्या करेगा, मिस्टेक करेगा, इससे भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। क्यों, जैसे मान लो मैंने क्या किया कि जर्मन लैंग्वेज में मैंने कोई मैसेज सेंड किया, US लैंग्वेज में मैंने कोई मैसेज सेंड किया, लेकिन मेरे सबॉर्डिनेट्स को वो लैंग्वेज नहीं आती है। अब वो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को अपनी ओन लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए ट्रांसलेशन में वो मिस्टेक कर जाते हैं, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी, उसको फॉल्टी ट्रांसलेशन बैरियर कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब होता है कि सम टाइम हमारी अजम्पशन क्लियर नहीं होती,
जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाती है। जैसे मैनेजर ने मैसेज सेंड किया अपने सबॉर्डिनेट्स को, टेक केयर ऑफ गुड्स। टेक केयर ऑफ गुड्स इट मीन्स गुड्स की सेफ्टी का ध्यान रखो, जबकि सबॉर्डिनेट्स ने टेक केयर ऑफ गुड्स का मीनिंग अज्यूम कर लिया कि गुड्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है। उसने मैनेजर ने मैसेज सेंड किया टेक केयर ऑफ गुड्स, इट मीन्स गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना है, सॉरी गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना है, जबकि सबॉर्डिनेट्स ने इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया गुड्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है। गुड्स को जब लोड और रिलोड हम कर रहे हैं तो गुड्स डैमेज ना होनी चाहिए, गुड्स हमारी क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। तो टेक केयर ऑफ गुड्स वर्ड्स तो एक है, लेकिन उसने तो टेक केयर वर्ड किसके लिए यूज किया है कि क्वालिटी को मेंटेन रखो, क्वालिटी का ध्यान रखो। सबॉर्डिनेट्स ने टेक केयर का क्या अज्यूम कर लिया कि भाई गुड्स की सेफ्टी का ध्यान रखो। समझ आ रहा है? इसका मतलब होता है कि मैंने खुद उस चीज को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। मैंने खुद अज्यूम करूंगी तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, एक हिंड्रेंस अराइज हो जाती है। एक और एग्जांपल लो इसका, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का। सम टाइम मैं क्या कर रही हूँ, कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ, मैं कोई बात ऐसे ही क्लास में डिस्कस कर रही हूँ और मैंने कोई एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे किसी कोई भी एग्जांपल मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, लेकिन वो एग्जांपल किसी एक बच्चे पे सेट हो गया। वो बच्चा उसको अज्यूम करेगा कि मैडम ने ये बात कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बोली है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही इस चीज को अज्यूम कर लिया, जबकि मेरे इंटेंशन स्पेशल उस बच्चे पे बोलने की नहीं थी। तो इसको भी अनक्लैरिफाइड असम्पशंस की वजह से अराइज होने वाली बैरियर होती है। कई बार हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं और हमने कोई एक बात ऐसे ही इनफॉर्मल वे में बोल दी जाती है, कैसे भी बोल दी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात किसी दूसरे पे सेट हो जाती है। तो वो बंदा क्या सोचेगा कि इन्होंने ये मेरे लिए स्पेशल बोली है या ये बात मेरे लिए इसने ग्रुप में बोली है। तो बेटा इन चीज़ों को आप क्या लो, मतलब कि इन चीज़ों की वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, बैरियर आती है। उसको अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कि किसी ने कोई बात दूसरे वे से बोली है लेकिन मैंने उसको दूसरे वे से क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, शायद इसका मतलब यही होगा, खुद ही सोच लिया होगा, ठीक है। जैसे कई बार आप लोगों को क्या है, ऑफिस में बुलाया, किसी बच्चे को ऑफिस में बुलाया, किसी टीचर को ऑफिस में बुलाया। अब ऑफिस में किसी भी काम से बुलाया होगा, ठीक है, लेकिन जब तक वो ऑफिस में जाता है तब तक उसके दिमाग में रहता है क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे प्रिंसिपल सर, मुझे ऐसे जवाब देना है, ये करना है, वो करना। आप खुद अज्यूम कर रहे हो उन चीज़ों को, वो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है। जबकि हो सकता है जाने वाले जो वो करेंगे, वहां जाने के बाद तो क्या बात होती है, उस टाइम आप क्या आंसर देते हो वो एक अलग है, लेकिन आप खुद ही अज्यूम कर रहे हो कि शायद उन्होंने इसलिए बुलाया होगा, शायद ये वाली दिक्कत होगी। तो बेटा उस बैरियर को अनक्लैरिफाइड अजम्पशन बैरियर कहा जाता है। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स यूज करना। सम टाइम सेंडर मैसेज सेंड करते समय कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करता है और उस टेक्निकल वर्ड का मीनिंग सिर्फ एक टेक्निकल पर्सन ही अंडरस्टैंड कर पाता है जिसको उस टेक्निक की नॉलेज हो। और अगर सबऑर्डिनेट्स उस टेक्निकल वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है बेटा, बैरियर आ जाती है। वो बैरियर किसकी वजह से आई, टेक्निकल जार्गन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही पता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। क्या साइंस के स्टूडेंट्स को ये बात पता है? अगर हम उनको ये सब बताएंगे, भाई डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, आप उनको बोलोगे तो ये हमारे कॉमर्स के टेक्निकल वर्ड है। क्या ये टेक्निकल वर्ड एक साइंस वाला बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा? क्या समझ पाएगा? नहीं। अगर उसको हम ये बात बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, क्योंकि मैंने टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए। कोई आईटी सेक्टर का एक्सपर्ट है, उसने अपने कंप्यूटर या आईटी के फील्ड के कुछ वर्ड यूज कर दिए, क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नहीं। एक और एग्जांपल, भाई मैनेजमेंट में एक बात है कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय जो है उनकी मीटिंग है, ठीक है, तो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की मीटिंग का मतलब होता है जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, उनकी मीटिंग है। लेकिन कुछ लोगों ने व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की मीटिंग का मतलब ये अंडरस्टैंड कर लिया है, भाई जो लोग व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आए हैं, ठीक है, जिनके शर्ट का व्हाइट कॉलर है, उन लोगों की मीटिंग है। इट मीन्स समटाइम हम अपने मैसेज में कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं और वो टेक्निकल वर्ड अगर सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो भी कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आती है। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। समटाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे जेस्चर से मैच नहीं कर पाती है, यानी जैसा मैंने बॉडी लैंग्वेज किया उस वे में जैसा मैं बोल रही हूँ मेरे वर्बल कम्युनिकेशन से। सिक्स्थ जो आपकी बैरियर है बेटा वो आती है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। इट मीन्स हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे जेस्चर से मैच नहीं हो पाती।
जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है मेरा वर्बल कम्युनिकेशन, और जेस्चर्स का मतलब होता है कि मेरी बॉडी जो जेस्चर्स करती है वो अगर आपस में मैच नहीं होते तो भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम सोन है, तो मैंने इशारा तो राम की तरफ किया, प्लीज स्टैंड अप, लेकिन नाम किसका ले लिया, इशारे तो किसकी तरफ कर रही हूँ, राम की तरफ, लेकिन नाम किसका, वर्बल कम्युनिकेशन किसका ले रही हूँ, मोहन का या श्याम का, जो भी नाम है। ठीक है, अगर मान लो मेरी क्लास में फॉर एग्जाम्पल मैं जया को बोलती हूँ कि जया प्लीज स्टैंड अप, ठीक है, लेकिन इशारा किसकी तरफ कर रही हूँ, मोनिका की तरफ। ऐसे ही कोई दो स्टूडेंट है, नाम किसी और का ले रही हूँ और इशारा किसी और की तरफ कर रही हूँ। नाम लेना वर्बल कम्युनिकेशन है, इशारा करना बॉडी जेस्चर्स है। ये दोनों अगर मेरे मैच नहीं हो पाते हैं तो ऑब्वियस बात है मेरे कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी। वो बैरियर किसकी वजह से आती है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग की वजह से, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम क्या कहना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि जिसकी तरफ इशारा किया उसका नाम नहीं है और जिसका नाम लिया उसकी तरफ इशारा नहीं है। ऑब्वियस बात है दोनों स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। एक और बात, कई बार बहुत गुस्से में है कोई सेंडर, मैसेज सेंड करने वाला पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में है और अचानक गुस्से में वो क्या कर देता है, हंस देता है, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, क्योंकि आपका जो जेस्चर्स है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर पाया, तो भी आपका कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आती है। ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन बैरियर, जिसमें आपका बेटा मैसेज को गलत तरीके से एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक ही वर्ड के दो मीनिंग होने की वजह से भी आ जाता है। अगर अदर लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे तो मिस्टेक हो जाती है। कई बार सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर खुद अज्यूम कर लेता है शायद इसका मतलब ये होगा, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। अगर आप अपने मैसेज में कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करते हो तो कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। और कई बार आपका वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी जेस्चर से मैच नहीं हो पाता, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सेमेंटिक बैरियर। और सेमेंटिक बैरियर किससे अराइज हो रही है, लैंग्वेज की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने कम्युनिकेशन बैरियर का फर्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस किया है। ओके, सो प्लीज अच्छे से वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप लोग बुक से रीडिंग करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो मैसेज सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।